Hi, this is Aditya, and this is the Funny Podcast. Here I'll be ranting about my hilariously odd past. If you kinda like it and find it worth a chuckle, then feel free to hit like or follow or even pay me a nickel. Hello, everyone, and I welcome you all to another episode of the Funny Podcast. Today is episode number 14. Thank you so much for listening to me all this time, and I'm just glad that I'm reaching out to this wonderful audience. Uh, to start off, opened up today's aspect with this thought. Like, I woke up in the morning and this thought popped in that I'm a little unfit now. And that brings me to the entire light of how to be more fit. And there are so many people who say so many things that focus on how to be exactly fit. So, there's someone who will always tell you that there's going to be yoga. There's someone who's always going to tell you that there's going to be exercising, workout. You have a gym in your building. Why don't you use it? All of that. It's just something that keeps on happening. So, what exactly is this particular question, and what exactly is the right answer when someone asks you how to be fit? This is one question. It will have multiple answers. There's yoga, this, then that. Your mom will always tell you that you should stop using your phone, which is technically right to an extent because if you don't spend so much time on your phone, you might just work out a little bit or you walk at least. Your dad might say that I don't know. I'm not a dad yet, so there are no inbuilt dad jokes that are coming up. But yeah, there'll be always suggestions. At least not there'll be exaggeration from your dad. Yeah, that's something that can happen that your dad might say that uh why don't you wake up earlier? You're waking up at 8 a.m. They want you to wake up at 4 just to be a little more productive apparently. Yeah, my dad used to say that get up, you're late for school at 6 a.m. saying that it's 7 a.m. I mean, I'm pretty sure that you wouldn't wake me up at 7. Yeah, because my school started at 7. Obviously, you would have gone through the terminal limits and done something drastic like throwing water on my face to wake me up if it was 7. So, yeah, there are so many things that your dad deals with by exaggeration. But when we talk about how to be fit, the most common and valid answer would be कि जब भी कोई पूछे जो मतलब एक चीज तो बोलेंगे ही क्योंकि वो बचपन से हम पे चढ़ाने की कोशिश की गई होती है एंड दैट इज टुडेज एपिसोड इट्स अबाउट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इज आई कैन नेवर डिसएग्री दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वेलबींग कि हाँ अगर सेहतमंद रहना है तो थोड़ा बहुत खेल कूद करना चाहिए अनलेस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईआईटीज तो आई मीन या देयर इज नो जोक देयर if you want to prepare for IIT, you need to stop playing. All the people who get success and then they claim in interviews that they've been studying and playing their line. That never happens. We all have only 24 hours in a day. So ये जोक नहीं था ये फैक्ट है बट स्कूल में ना स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और सबको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी है कि हाँ ये स्पोर्ट खेल लो वो स्पोर्ट खेल लो चाहे वो क्रिकेट या फुटबॉल जैसा मेन स्ट्रीम स्पोर्ट हो वॉलीबॉल या हॉकी जैसी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है देन देयर इज बास्केटबॉल बास्केटबॉल एक्चुअली इज मोर मेन स्ट्रीम देन क्रिकेट इन इंडिया सॉरी इंडियन स्कूल्स क्योंकि होता ये है कि इन सब के बीच में ना अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज की भी बात है तो स्पोर्ट ऑप्ट करना हैज़ सम वेरिएबल्स इन इट has one particular variable which I'm going to discuss now. The variable is that opportunities that you get for sports they are directly proportional to the size of the field available in the campus. तो कैंपस में तुम्हारा स्कूल में जितना भी ज़्यादा अवेलेबल हो ज़मीन खेलने के लिए उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर बहुत बड़ा कोर्ट ग्राउंड है तो
या फिर फील्ड है, तो यू कैन हैव फुटबॉल, क्रिकेट, यू कैन हैव वॉलीबॉल, यू कैन हैव बास्केटबॉल का कोर्ट अलग से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट अगर जमीन नहीं है तो कहाँ से होगा? तो अब हर स्कूल में मैदान तो होता है, बट साइज इट वेरीज, दैट इज वाई इट इज अ वेरिएबल, दैट हाँ कहीं पे बहुत बड़ा जमीन है, कहीं बहुत छोटा है। एंड आई हैव विटनेस डिफरेंट साइज के जमीन थ्रू आउट माई स्कूलिंग लाइफ बिकॉज आई हैव चेंज्ड अ फ्यू स्कूल्स. So I'll be talking about these specific schools that I've been to and how the size of the field has been a very important part on what I've chosen, because yes, size does matter. So when I talk about schools, my first school was an ICSE school, private school, ICSE school. तो उनकी वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उनके यहाँ पे पढ़ाई होती है. तो स्कूल मतलब आईसीएससी में ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचर का कि व्हेन यू आर गिविंग देम अ स्पोर्ट्स और अ पीटी पीरियड, दैट इज समथिंग दैट द चाइल्ड विल गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी. कि हाँ तुम्हें ये फ्री पीरियड दे दिया, लेकिन फ्री पीरियड को हमने डेजिग्नेट किया है, तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में तो हम लिखेंगे कि हाँ यू हैव हैड फिजिकल एजुकेशन, यू हैड पीटी, यू हैड स्पोर्ट्स, जो भी, और एक ग्रेड पकड़ा देंगे. बट इट वर्क्स इन दैट वे कि हाँ एक्सपेक्टेशन तो यही है कि तुम जाओगे लाइब्रेरी. लाइब्रेरी काफी अच्छा होता है, लाइब्रेरी आई गेस 2 बास्केटबॉल कोर्ट की साइज जितना है, या फिर 2 फ्लोर्स थे, तो हाँ टेक्निकली बास्केटबॉल तो खेल सकते हैं उसके अंदर, इतनी जमीन थी. और उसी में अगर हम लोग बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट ले लें, वो और ज्यादा खेल सकते हैं. तो आईसीसी वालों का ये ऑब्जेक्टिव था कि हाँ एक मतलब दिखाना तो होगा ना, स्कूल का वेबसाइट बनेगा, फिर ड्रोन शूट करेंगे क्योंकि बच्चों की एडमिशन चाहिए, तो उसमें दे पुट दिस थिंग अप दैट यस वी हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट. तो एक बास्केटबॉल कोर्ट दे देते हैं, उसके आजू बाजू थोड़ी बहुत चीजें लगा देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं तो स्विंग्स वगैरह लगा दो ताकि पेरेंट्स गेट अर्ली इन द स्टेज, पेरेंट्स गेट अट्रैक्टेड. तो हाँ इनके पास अच्छे हैं सब कुछ, बट या दैट इज ऑल. एंड it took me a while because I was a kid back then when I was in an ICSE school, but उनका बास्केटबॉल कोर्ट स्टैंडर्ड साइज से काफी बड़ा था, क्योंकि उसी में वो लोग बास्केटबॉल तो खिला ही रहे हैं, असेंबली भी करा रहे हैं. तो सारे बच्चों के लिए इतनी जगह चाहिए थी, उसमें उन्होंने दोनों एंड्स पे 2 हुप लगा दिए. बास्केटबॉल कोर्ट, दैट इज ऑल इट इज, देयर इज नथिंग एल्स. थोड़े बहुत इधर उधर लगा दिए, और मोस्टली जो बाकी का खाली जमीन है ना, जिसपे कहीं पे एक झूला है, कहीं पे एक स्विंग है, लाइक कहीं पे स्लाइड्स हैं, सीसॉस हैं, वो एक बड़े जमीन के अंदर है. आई वोंट डिसएग्री टू दैट, बट वो जो जमीन की साइज और प्रोपोर्शन है ना, वहाँ पे गाड़ी कहीं नहीं पार्क, मतलब वहाँ पे सिर्फ गाड़ियां ही पार्क हो सकती हैं. वहाँ पे खेल कोई नहीं सकता, कोई एक प्रॉपर स्पोर्ट तो नहीं खेला जा सकता. क्रिकेट खेलने के लिए भी तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए. 22 यार्ड तो ठीक है बैटिंग करने के लिए, पिच बनता है वो, बट उसके अलावा भी तो ग्राउंड होता है. तो वो वहां पे उस चीज का बिल्कुल अंड कॉम्प्रिहेंशन था ही नहीं, उन्होंने ऐसे ही बना दिया बस एक बास्केटबॉल कोर्ट, एंड वहीं पे जो खेलना है खेलो ना, वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज, खेल लो. उसके बाद मैं एक स्कूल शिफ्ट हुआ, तो आईसीएसई से मैं सीबीएसई में तो शिफ्ट हुआ, लेकिन इट वाज अ स्पेसिफिक सीबीएसई, इट्स अ सरकारी सीबीएसई दैट वी नो एज केंद्र विद्यालय. कुछ पेरेंट्स उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने के नाम पे सेंट्रल स्कूल बोलते हैं, और कुछ लोग जो काफी अपने रूट से कनेक्टेड है बट स्टिल जमाने के साथ बदलने की कोशिश कर रहे थे, दे कॉल इट केवी. तो केवी में ना पता नहीं क्या ही था, वो स्कूल था, बहुत बड़े कैंपस के अंदर था. दिस वाज इन अ वेरी स्मॉल टाउन, बट द कैंपस वाज ह्यूज. आई थिंक वहाँ के सेक्रेटेरिएट से, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, वहाँ के सेक्रेटेरिएट से ज्यादा बड़ा हमारा स्कूल था. एंड उसमें उन्होंने बस यही सोचा था कि हाँ बस इतनी क्लासेस होंगी, और केवी में जितना मुझे याद है हमारे टाइम पे तो 4 सेक्शन होते थे हर क्लास में, दैट्स ऑल. 4 में 40-40 के 4 पुड़िया बना के बच्चे भेज दो. तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ इतनी क्लासरूम्स बनेंगी, इतनी जमीन चाहिए, बना दिया.
उसके बाद जो सरकार ने इतनी जमीन इन्हें अलॉट की है, उसका क्या करना है? कुछ नहीं, घास डालो, मैदान बना दो। और इतना बड़ा मैदान था कि शायद, आई थिंक, मेरे जो 3 स्कूल्स हैं उन सब की सर जो बिल्डिंग की एरियाज है ना, मिला दे, नहीं बनेगी। उससे ज्यादा तो जमीन थी हमारी फील्ड में, बहुत बड़ा जमीन। और हर मतलब इतनी चीजें हो सकती हैं वहां पे, क्योंकि इतना बड़ा वो है, फील्ड है। वहां पे तुम शायद कॉमनवेल्थ भी खिला खिला सकते थे, इतनी बड़ी जमीन थी। तो इट वाज लाइक स्कूल, जमीन, स्टाफ क्वार्टर्स। स्टाफ क्वार्टर फ्रेम के बाहर इसलिए क्योंकि काफी इरेलीवेंट था वो। वहां पे बॉल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि इतना बड़ा जमीन था कि बॉल को भी पार करके गई नहीं। तो स्टाफ क्वार्टर्स आ गया। तो ये केवी का था। केवी बहुत बड़ी जमीन थी, और हम मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक चल लो, तुम्हारा हो गया कार्डियो। चल लो, दौड़ो भी नहीं, चल लो। तो इतनी बड़ी जमीन, मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बट नहीं होती थी वहां पे। तो मतलब क्या बोले यार, केवी में स्पोर्ट्स, जिस केवी में मैं था वहां की बात कर रहा हूँ। कोई आके ये ना बोल दे मेरे को कि ये है वो है, फलाना ढिमाका। बट हाँ, स्पोर्ट्स इतना कोई खेलता नहीं था, वो जमीन बस टहलने के लायक ही थी इतनी। और इतनी बड़ी जमीन थी कि क्या करें, माली का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बारिश में क्या होता था, इट वॉज इन द सेंट्रल एरिया। तो बारिश होती थी महीना 1.5 महीना, उस बीच में हम खेल नहीं पाते थे क्योंकि कीचड़ हो जाता है। तो हम सामने की साइड आ जाते हैं, जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट था वो अलग। तो घास बहुत बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, स्कूल के अंदर गाय आने देते हैं, और मस्त गाय हफ्ता 1.5 हफ्ता तो चरने लग जाती है वहीं पे। वहीं पे चरती है वहीं पे। तो कल्टीवेशन के लिए तो काफी चीजें थी, स्पोर्ट्स के लिए मतलब नहीं हो पाता इतना। ये चल रहा था हमारा केवी में। और केवी में मैं 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद आई शिफ्टेड टू अनदर स्कूल फॉर माई हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आई वेंट टू अनदर सीबीएसई स्कूल, बट दिस टाइम इट वाज प्राइवेट। तो प्राइवेट स्कूल में ना जमीन नहीं थी। प्राइवेट स्कूल की जो बैक साइड की वॉल थी, वो थी अराउंड 4.5 फीट के या 5 फीट की। तो हम लोग को वो वॉल के बाउंड्री के दूसरी तरफ दिखता था कि सिर्फ जमीन ही जमीन है, दूर दूर तक। जितना केवी में शायद जमीन था, उतना तो जमीन था। बट स्कूल के अंदर कुछ नहीं था, इट वॉज ऑल कॉन्क्रीट। तो थोड़े बहुत जगह पे छोटे छोटे पैचेस में ग्रीन्स थे। और हर 6 महीने के बाद वो जो ग्रीन पैचेस है वो भी कंक्रीट बन जाता है, क्योंकि एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। प्राइवेट स्कूल की तो यही बात होती है कि यार बहुत बच्चे आते रहते हैं, तो एडमिशन बढ़ते हैं। एंड जो मैं बोल रहा था कि हमारे हर एक क्लास में 4 सेक्शन होते हैं केवी में, मैं 11th में आई सेक्शन में था। आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। और मेरे दोस्त जिन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले मैथ्स की सेक्शन थे, फिर बायो के था, तो मैं बायो वाला था, इसलिए नहीं आई में था। तो A to H मैथ्स, I J बायो, यस, J 10वां लेटर। एंड आई थिंक N तक गया हुआ था, जितना मुझे लास्ट आई रिकॉल। तो हाँ, KMN 13 सेक्शंस थे। तो बच्चे बढ़ते जाते हैं, और हर एक में 40 का वही पुड़िया। तो बच्चे बढ़ते गए, और कंक्रीट बढ़ता गया, घास घटती गई बस। अब शायद नहीं है वापस। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। पेड़ नहीं है वो। हमें अगर सांस लेनी होती है तो हम बैक गेट के पास जा सकते हैं, वहां से दूसरे तरफ की फील्ड का वो आ जाता है। ऑल्दो वो भी लैंड फिल जैसे ही था। तो आई मीन तुम अपनी डिसीजन खुद ले लो वाली बात थी। तो हाँ, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सीबीएसई में ज्यादा थी। खेलने के लिए भेजते थे, इंटर ये इंटर वो, क्योंकि दिखाना होता है। और हर प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है दूसरे प्राइवेट स्कूल्स के साथ। तो देयर वाज दिस कंपटीशन, जिसकी वजह से यू गेव देम अपॉर्चुनिटीज। बट वो अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प करने के लिए तुम्हें दूसरी जगह पे खेलने जाना पड़ता था, इधर उधर के फील्ड्स पे।
क्योंकि खुद का फील्ड तो था नहीं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं पे साइज ज्यादा है लेकिन फ्लॉज ज्यादा है। सरकारी स्कूल में इतना वो नहीं था, प्लस हमारी जो जमीन थी वो थोड़ी फकौल टाइप की थी, क्योंकि बारिश होता था तो धंस जाते थे, बीच बीच में गड्ढे आ जाते थे, एंड गड्ढों में से सांप निकल आते थे। वो सांप फिर स्टाफ क्वार्टर्स चले जाते थे। फिर स्टाफ वाले आके बोलते थे कि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, घर में सांप आ गया। बट स्टाफ क्वार्टर्स में जो होता है वो अगेन इरेलीवेंट है, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। बट वो गड्ढे बड़े दिमाग खराब करते थे, बिकॉज वहां पे फिर आप कुछ खेल नहीं सकते। तो आई रिमेम्बर वंस आई वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड बॉल हवा में थी, तो मैं भाग रहा था बॉल के पीछे कि आई कैच इट। तो मैं ऊपर देख के भाग रहा था चूतियों की तरह, मैं गड्ढे में गिर गया। बॉल तो गई, बॉल की बात छोड़ो ना, तुम अगर वेट कर रहे हो कि मैं कंप्लीट करूँ स्टोरी की बॉल का क्या हुआ, नहीं, मैं गिर गया, मेरे लिए स्टोरी वहीं खत्म। प्लस वो विंटर का टाइम था तो मेरा स्वेटर खराब हो गया था, तो मम्मी और मारेगी। स्वेटर स्वेटर थोड़ा ना रोज धुलता है। हाँ। तो इतना सब होता है, साइज का इतना फर्क होता है, बट स्टिल देर आर, कहीं पे साइज ज्यादा है बट फ्लॉज तो हैं, कहीं पे साइज नहीं है बट एडवांटेजेस भी हैं। और इन सब के बाद भी हम बोलते हैं कि यार इंडिया स्पोर्ट्स में मेडल क्यों नहीं लाता। आई डोंट नो क्यों नहीं लाता यार, तुम लोग बताओ। तो यहाँ कहीं पे कमेंट कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक दबा दो अगर तुम्हें भी लगा है या फिर तुमने भी कभी ऐसा रिलेट किया है। सब्सक्राइब प्लीज दबा दो भाई, 100 कर लो। मेरे पॉडकास्टिंग में 100 की ऑडियंस बन चुकी है। यूट्यूब पे तो बननी चाहिए यार, यूट्यूब इज अ मोर अपेरेंटली बिगर नेटवर्क। तो सब्सक्राइब, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ स्कूल में तुमने ये चीज़ विटनेस की होगी। एंड हाँ, अभी एक लोगो आएगा, ये पेट्रियन का लोगो है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का there's a link, वहां जाओ, you can make a small pledge and by your pledges I will only invest in the podcast। मैं उसके चाप नहीं खाऊंगा। तो जाओ, इफ यू लाइक इट, इट्स ऑन ऑल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ कहीं पे तुम्हें जो जो प्लेटफॉर्म है उन सब के लोगोस दिख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में अगेन देयर इज अ लिंक, एंड stay tuned, we'll be back, thanks for listening, and just comment if you like it, also like if you like it. Thank you, bye bye.